السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سورن کوٹ حلقے میں جاری گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا اقدام کے تحت ایک عظیم ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سینئر رہنماؤں، پارٹی کارکنوں اور مقامی باشندوں کی پرجوش شرکت دیکھی گئی، جو مقامی پرچم کو منانے اور اسے عزت دینے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سورن کوٹ بی جے پی کی کور ٹیم کی قیادت میں منعقد کی گئی یہ ریلی حب الوطنی اور اتحاد کا ایک متحرک مظاہرہ تھا۔ شرکاء ترنگا اٹھائے ہوئے سورن کوٹ کی گلیوں میں مارچ کرتے ہوئے قوم اور اس کے اقدار سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے راجندر نگر میں تلجا بھوانی ہوٹل کا بڑے پیمانے پر افتتاح عمل میں آیا اور اس کا افتتاح سینئر بی جے پی لیڈر سری دھر نے کیا۔ اور ویج بریانی بغیرہ رائس یہ ہوگی మా ఓపెనింగ్ చేస్తున్నాము। చీఫ్ గెస్ట్ రూపంలో అర్చన మేడం గారు, మన కౌన్సిలర్ వచ్చినారు, మన శ్రీధర్ అన్న, సయ్యద్ గారి వాళ్ళు కూడా మాకు సహకరించి ఓపెనింగ్ చేస్తున్నారు। ముహూర్తాన వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ శుభాకాంక్షలు మమ్మల్ని ఆశీర్వాదించారు। ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ స్పెషల్ ఏమైనా ఉందా? స్పెషల్ వచ్చేసి ఫ్రీ, మొత్తం టోటల్ ఫ్రీ పెట్టేస్తాం। దయచేసి అందరూ عادی سنواس گورنمنٹ وپ نے کہا ہے کہ ریاست کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے والے ریونت ریڈی کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا۔ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کو امریکہ سے متعارف کرا رہے تلنگانہ کو سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے جنت میں تبدیل کیا جا رہا۔ بی آر ایس لیڈر ریونت کے دورے امریکہ کی کامیابی کو برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ مفتی سید اکبر صدر تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ نظام آباد نے ایک صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اس پر پرفتن دور جہاں میں دیگر ارتدادی فتنوں کی جانب سے اہل ایمان کے دلوں سے اسلام و ایمان کی عظمت نکال کر مرتد بنانے کی ہمہ جہت کوشش کر رہے، وہیں پر مسلم نئی نسل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام سے ناواقفیت کی وجہ سے ارتدادی مشن کا شکار ہو رہے۔ اسی وجہ سے امت کے نونہالوں، طلبہ و طالبات کو ارتدادی فتنوں کی جانب سے ہونے والی کوششوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کی جانب سے سرزمینی نظام آباد میں پہلی مرتبہ عظمت صحابہ کوئز کا سکولز کالجز میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے لیے انعقاد عمل میں لایا جا رہا۔ مفتی سید اکبر نے کہا ہے کہ طلبہ و طالبات کے لیے سنہرا موقع ہے کہ اس کے ذریعے رسول اللہ کے صحابہ کی عظمت اور ان کے ناموس کی آگاہی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ تحفظ ختم نبوت ایجوکیشنل و چیریٹیبل ٹرسٹ ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام سرزمین نظام آباد پر پہلی مرتبہ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے، صحابہ کے بارے میں صحیح عقائد کی اشاعت کے لیے، نسل نو کو صحابہ سے متعارف کرانے کے لیے، دشمنان صحابہ کو بے نقاب کرنے کے لیے، صحابہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، امت کو صحابہ کے مقام سے واقف کرانے کے لیے، صحابہ کی خدمت سے ملت کو آشنا کرانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئز مقابلے برائے اسٹوڈنٹس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 11 ربیع الاول مطابق 15 سپتمبر بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک بمقام کلاسک فنکشن ہال قلعہ روڈ، بمقام گولڈن فنکشن ہال قلعہ روڈ یہ فائنل مسابقہ مقابلہ منعقد ہوگا۔ شہر کے تمام ہائی سکولز و کالجز کے طلباء طالبات اسٹوڈنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کوئز کے اندر ضرور حصہ لیں، شرکت کریں
इंशाल्लाह इससे आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। और स्टूडेंट्स के हौसला अफजाई के लिए इनाम भी तय किया गया। जूनियर ग्रुप 2nd क्लास से लेकर 5th क्लास तक इन बच्चों को इनाम अव्वल 5,000 रुपये, इनाम दुआम 4,000 रुपये, इनाम सवम 3,000 रुपये, तरगीबी इनाम हर ग्रुप में 5 बच्चों को दिया जाएगा। हाई स्कूल जो ग्रुप है वो 6ठी जमात से 10वीं जमात तक, 6th से लेके 10th तक, इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनाम अव्वल 8,000, इनाम दुआम 7,000, इनाम सवम 6,000, तरगीबी इनाम 5 बच्चों को 300 के हिसाब से। और तीसरा इंटर और डिग्री ग्रुप है, इसमें हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को इनाम अव्वल 11,000, इनाम दुआम 10,000, इनाम सवम 9,000 और 5 तरगीबी इनाम 400 के हिसाब से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी, यहाँ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म दफ्तर पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जूनियर ग्रुप के लिए किताब के साथ 140 रुपये तय की गई। किताब भी जो है, ये जो किताब है माशाल्लाह ये जूनियर ग्रुप के लिए, इसमें सवाल जवाब उर्दू में भी है, रोमन इंग्लिश में भी है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस हाई स्कूल ग्रुप किताब के साथ 200 रुपये है, इसमें भी सवाल जवाब उर्दू ज़बान में है और रोमन इंग्लिश में है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इंटर और डिग्री ग्रुप के लिए किताब के साथ ये 250 रुपये है, इसमें छोटे छोटे मज़ामीन हैं, कीमती मज़ामीन, उर्दू में भी है, रोमन इंग्लिश में भी है। तो सरपरस्तों से भी गुजारिश है, स्टूडेंट्स से भी, कि वो ये रजिस्ट्रेशन कराएं, किताबें हासिल करें और इस्तिफ़ादा करें। अभी 1 महीना मुकम्मल है, अच्छी तैयारी करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा होगा। और ये पहली मर्तबा ये क्विज़ मुनक़िद हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी जो है ज़ौक़ शौक़ से इसमें हिस्सा लें और दुआ की भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दीगर तफसीलात इसके अंदर आप मुलाहज़ा कर सकते हैं। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये पम्फलेट भी दिया जाएगा, इसमें शराइत दाखिला और सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। आप मुलाहज़ा कीजिए, इस्तिफ़ादा कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निजामाबाद के साबिक़ वक्फ बोर्ड के सदर कांग्रेस लीडर जावेद अकरम ने कहा है कि मोदी हुकूमत की तरफ से लोकसभा में वक्फ कानून में 40 तरामीम के साथ मुजवज़ा बिल को पेश करने का मकसद सिर्फ अरबों रुपए की औक़ाफ़ी जायदादों के लिए है। ये सिर्फ मुसलमानों को महरूम करना नहीं बल्कि औक़ाफ़ के मामलात में मदाखलत करके शरीयत में बिला वास्ता मदाखलत करना और औक़ाफ़ के मामलात में गैर मुस्लिमों की मदाखलत की राह हमवार करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी और उसकी अलायंस जमातों ने मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के क़ानून को तब्दील करने के लिए जो बिल रखा है पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस जमातें हैं, जिन्होंने बीजेपी जैसी फ़िरक़ा परस्त जमात और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में जो जमातें जो कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर जो आवाज़ उठाई मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बिल के ताल्लुक से, सबसे पहले मैं तमाम जमातों के क़ायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ जायदादें हैं वो 8 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है। नरेंद्र मोदी के 2 चमचे अडानी और अंबानी की नज़र वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज़िलों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटियों में, बड़े स्टेटों में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है हमारे पुरखों ने, जो हिंदुस्तान में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ अल्लाह की अमानत होती है। वैसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी सियासी जमातों का, उसकी अलायंस जमातों की जो नज़रें हैं, पार्लियामेंट में जितने भी लोग, जितनी भी सियासी जमात के क़ायदीन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बिल के मुखालिफ ठहर कर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए,
मैं और मेरे तमाम तेलंगाना के और निज़ामाबाद ज़िले के मुसलमानों की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी और तमाम अलायंस जमातों ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को और पैसे वाला बनाने के लिए हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पर नज़र रखी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर्स पार्लियामेंट में बिल को मनसूख करने की बात कही, पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के बिल को नहीं रखने की बात कही। वो कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम जमातों ने एक आवाज़ होकर वक्फ बोर्ड के बिल को मनसूख करने की बात कही। ऐसे कायदीन जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में एक दूसरे हिंदुस्तानी का दर्जा देते हैं, हिंदू भाइयों के बाद अगर कोई हिंदुस्तान में ज़्यादा अगर तादाद में मेजॉरिटी में है तो हम मुसलमान हैं। हम हिंदुस्तान के लिए मर मिटने की बात करते हैं। हम ये हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के लिए मुसलमान आगे आते हैं। हमारे आज़ादी में जितने भी उलमाए दीन ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिए, और वो मुसलमानों के बच्चे, वो जो उलमाए दीन के अहले ख़ानदान, तमाम लोगों ने मुसलमानों के गरीबों के बच्चे जो यतीम नसीर है, बेवाएँ हैं, जो मदरसे हैं, उन लोगों के इमदाद के लिए, उन लोगों की सहूलत पहुँचाने के लिए जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी जायदादों को जो वक्फ किया है, वो वक्फ बोर्ड की जानिब से वो ज़मीनों की जो हिफाजत हो रही है। 2013 में कांग्रेस हुकूमत ने एक बेहतरीन बिल पास की थी, वक्फ बोर्ड के तहत जो बिल बनाया गया था 2013 में, ये बीजेपी हुकूमत वो 2013 के बिल में तब्दीली। ट्रेडर्स फेडरेशन बेरवा की सदारत की तकरीब हलफ बर्दारी टाउन हॉल बेरवा में मुनक़िद हुई। इरशाद अहमद बांडे ने ट्रेडर्स फेडरेशन बेरवा के सदर मीर वाइज़ वसती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी से हलफ लिया। शफीक अहमद शेख को फेडरेशन का नायब सदर और नज़ीर अहमद वानी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। हलफ बर्दारी के दौरान ये वादा किया गया कि तमाम ताजर ईमानदारी और अच्छे अखलाक के साथ अपनी तिजारत जारी रखेंगे और दरपेश तमाम मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। कदम वनकस तुल बीरस में फेडरेशन बनो, अमिस फेडरेशन से जिम्मेदारी ट्रेडस वाबस्त ट्रेड ठीक कर तमीरी काम बीरस मं बीर के इलाके मफाद खतर अम खतर दरिया मैदानस मं इंशाअल्लाह रहमान सारी मतलब अत ट्रेड सिविल सोसाइटी सोन मीर वाइज मुनज़्ज़म पे बीर तमीर। जो हमारी समाजी जिंदगी है, इस समाज के हर शोबे में एक नज़्म ज़ब्त पैदा करना जरूरी है। तो हमारा ट्रेड का जो सेक्टर है, इस सेक्टर को मुनज़्ज़म करने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन का बनना बहुत जरूरी है। यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन बनी और हमारे इरशाद साहब इसके सदर बने, तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है। तो मेरा यही है कि जो हलफ इन्होंने ले लिया, मैंने हलफ दिलाया, वो यही है कि जो हमारा ट्रेड है वो दियानतदारी पर चले, उसमें जो हमारे खरीदार भाई हैं, सारिफीन हैं, उनके मफादात का भी ख्याल रखा जाए, और जो हमारी दुकानदार बरादरी है उसके मफादात का ख्याल भी रखा जाए। क्योंकि आजकल जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर में हम देख रहे हैं कि मिलावट बहुत बढ़ गई है, नाजायज मुनाफाखोरी आम है। सबों का यहाँ इकट्ठे होना, इसका एक ही मकसद है कि हम अपने इलाके के लोगों के लिए एक राहत का बंदोबस्त करें। चाहे वैसे सार्फिन में हम हैं या वैसे ताजिर हम, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी अपनी मार्केट को सबसे बेहतरीन मार्केट बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा मार्केट के साथ साथ जो भी इलाके में हमारे बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं, ख़ासकर बीरवा पुल, इसके पुल जो एक अहम मतलब हैसियत रखता है, जो दो डिस्ट्रिक्टों, डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बडगाम को मिलाता है। इसके अलावा जो यहाँ मतलब टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, टोस मैदान है और दूधपत्र है, इसको आने जाने का एक वाहिद एक ज़रिया है। इसके लिए हम आज के रोज़ आहत करते हैं कि हम ट्रेड यूनियन के साथ साथ ये जो भी मसाइल हैं हुकाम बाला के कानून तक
पहुँचाकर इनका अजाला करेंगे। मोटर टेक्नीशियन वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने मिलकर वजीर नारा लोकेश से ऑटो वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए मंगलगिरी में MSME ऑटो पार्क कायम करने की दरख्वास्त की है। मंगलगिरी से ताल्लुक़ रखने वाले पुल्ली शिवमा ने पेंशन देने और उसकी मदद करने की अपील की है जो बिस्तर पर महदूद हैं। मंगलगिरी हल्के आत्माकुर के चिंतला चेरू मरियम्मा ने कहा है कि वो बगैर शौहर के 3 बच्चों के साथ 26 साल से किराए के मकान में रह रही हैं और उन्होंने मकान और मदद की दरख्वास्त की है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरैया विश्वविद्यालय एक समाजी खिदमत पर मबनी इदारा है जो 1936 में कायम किया गया था। ये तंजीम अपने क़याम से लेकर अब तक इंसानों के साथ गुमशुदा या जवाल पजीर इंसानी इक़दार को जोड़ने और कायम करने के वाहिद नज़्बुल ऐन के साथ बेलौस खिदमत अंजाम दे रहा। दुनिया भर में एक पुरअमन मुआशरा ये कदीम राजा योगा मुराकबा जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों को मुफ्त सिखाता है। इस मुराकबे के मश्क करने वाले अमन, खुशी, शुक्रगुजारी, माफ़ी वगैरह की बुनियादी अक़दार का तजुर्बा करते हैं जो एक खुशकुन ख़ानदान, रियासत और दुनिया की मजबूत बुनियाद रखते हैं। रियासती सेक्रेटरी पोटा लक्ष्मण ने AISF के 19वें यौम तासीस के मौके पर AISF स्टेट ऑफिस हिमायत नगर अमृता स्टेट में श्वेता अरुणा परचम की नकाब कुशाई की है। इस मौके पर उनका कहना था कि 12 अगस्त 1936 को मुल्क की आज़ादी के लिए वजूद में आने वाले AISF को 88 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दिन AISF ने मुल्क भर के तलबा को अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने के लिए मुनज़्ज़म किया और अपना किरदार अदा किया। वायनाड को कौमी आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। वायनाड केरला के मगरबी घाटों में वाक़ है। रियासत को खुदा की रियासत कहा जाता है। ये मगरबी घाट हयातियाती तनु का एक मुकाम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधों, जानवरों, दिलकश सब्ज ज़मीन के मनाजिर और पहाड़ हैं। इसलिए यूनेस्को ने इस गर्म मुकाम को इसकी खूबसूरती के लिए आलमी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया है। आइए हम सब वायनाड और शानदार हॉटस्पॉट के लोगों की हिफाजत में मदद करें। आइए हम सब सियासी वाबस्तगियों से क़तई नज़र हयातियाती तनू की इस नौयत की मदद करें। चाहे नरेंद्र मोदी महज दौरे तक ही महदूद रहें या मुतासरीन के लिए कुछ करें। डॉक्टर के नारायणा नेशनल सेक्रेटरी CPI ने केरला के वायनाड के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया। కేరళలో వాయనాడులో ఒక మారుమూల ఈ కేరళ స్టేట్లోనే వాయనాడు అనేది చాలా ప్రకృతి అందచందాలతో కూడుకున్నటువంటి గాడ్ గిఫ్టెడ్ అంటారు, నేచర్ గిఫ్టెడ్ అంటారు. ఉన్న కేరళలో అందజన ప్లేస్ వాయనాడు నెంబర్ 1. దీన్ని మా కొండచెరియలు ఫారెస్ట్ ఇదంతా ఇల్లు ఉన్నాయి. మొత్తం టౌన్షిప్ లాగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మొత్తం పెద్ద పడవలు వచ్చాయి. ఇది సహజంగా నేషనల్ కెనాలి. ప్రకృతిలో అయితే మేము ఏం చెప్పాలని అంటారేమో చేయాలి. దీనికి రిచ్లో ఫీల్డ్ వెళ్తాం. అది చేసిన శబ్దాన్ని చూసి ఆ పూర్వలు ఖాళీ చేస్తారు. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి నిఘా విభాగాలు సరైన పద్ధతుల్లో లేదు. ఎప్పుడైనా ఇది ప్రకృతిని దాడి చేసేటువంటి పద్ధతిలో నిఘా విభాగాలు ఉపయోగిస్తాం తప్ప ఈ నేషనల్ కెనాల్ ఫార్కాస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైనా కానీ రీహాబిలిటేషన్ అవసరం. దీనిపై ఈరోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చాడు, చూశాడు, వెళ్ళాడు. మరి ఇది ముద్దబంతి పువ్వులాగా వచ్చిపోతే లాభం లేదు. దీనికేదో యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఇది జాతీయ విపత్తుగా గుర్తించి L3ని అమలు చేసేటప్పుడు సాధ్యం కాదు. రోజు జాతీయ విపత్తు గుర్తించి లాభం. కానీ L3 అనేది సీరియస్గా ఉండేటువంటి కష్టం. ఆ విధంగా దాన్ని గుర్తించుకుంటే పోతున్నాం. ఏమంటో తెలియదు. ఏమైనా కానీ ఈ కేరళకి పెద్ద నష్టం కల్పించే విధంగా చాలా బాధాకరం. చనిపోయిన వాళ్ళందరూ దాదాపు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యకర్త దాదాపు 70 మంది నిలుపుతున్నారు. మొత్తం 450 మంది నిలుపుతున్నారు. ఇంకో 500 మంది ఇష్టపడుతున్నారు. ఇది దేశం మొత్తం మీద అందరూ ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదిగా వృధామూర్తి గారి పరిచయగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున మేము కూడా మాకు కావాల్సిన సహాయం బియ్యం, బట్టలు, మంట వాళ్ళకి అన్ని కూడా సహాయం చేస్తున్నాం. ఏమైనా కానీ చనిపోయిన వాళ్ళకి ప్రజా సంతాపం ఇస్తూ ఈ జాతీయ విపత్తు సంబంధించిన నష్టానికి చాలా బాధపడుతూ త్వరగా కోలుకోవాలి, రాష్ట్రం కోలుకోవాలి. ప్రజాధికారికి ఇంకా
बन रहा होगा सब कुछ बिल्कुल इनका से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने गोलकुंडा किले का दौरा करके यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हुक्म दिया कि वो तकरीबात को शायान शान तरीके से मुनक्किद करने के लिए वसी इंतजामात करें। डायरेक्टर कल्चर डिपार्टमेंट हरि कृष्णा ने कहा है कि यौम आज़ादी की इस तकरीबात की असल तवज्जो हमारे सकाफती विरसे की अक्कासी करने के लिए रिवायती लिबास में फनकारों की परफॉर्मेंस होगी। अमेरिका के दौरे के दौरान कंपनी के नुमाइंदों से मशावरत अमेज़न ने हैदराबाद में अपने डेटा सेंटर की तोसी में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। अमेज़न वेब सर्विसेज डेटा सेंटर प्लानिंग एंड डिलीवरी के नायब सदर कैरी पर्सन IT और सनत के वजीर श्रीधर बाबू ने कंपनी के वफ्द से मुलाकात की। तेलंगाना में डेटा सेंटर की कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया। सुबह की अवलिन सातों में भैंसा शहर के कंटा एरिया इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से निर्मल जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर भैंसा ASP अविनाश कुमार IPS की क़ियादत और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए घर घर तलाशी लेने के दौरान गाड़ियों के मुकम्मल और मालिकाना दस्तावेजात की जांच की गई और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी व बगैर नंबर प्लेट के 102 मोटरसाइकिल, 8 3 व्हीलर्स और 1 4 व्हीलर को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान ऑफ पुलिस जिनमें मोहम्मद गौस, मोहम्मद शरीफ के अलावा 60 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। సో ఈరోజు మన ఈ ఏరియాలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. దీంట్లో మన సిఐ భైంసా టౌన్, SI షరీఫ్, SI గౌష్ ప్లస్ మన బటాలియన్ టీమ్ మొత్తం 60 మంది ఉన్నారు. దీంట్లో బేసికలీ మన ఏం ఇంటెన్షన్ ఉంది कि మన లోకల్ ఏరియాస్ దే నీడ్ టు నో ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం నడుస్తుంది, క్యా క్యా క్రైమ్స్ ఎట్లా జరుగుతుంది, అది క్రైమ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఎట్లా రియాక్ట్ చేయాలి, దీనికి సంబంధించిన ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ప్లస్ చాలా బండిలో నెంబర్ ప్లేట్ లేదు, చాలా చలాన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. అది ఆ బండి కూడా సీజ్ చేసాము ఈరోజు. టోటల్ 102 2 వీలర్స్, 8 3 వీలర్స్ అండ్ 1 4 వీలర్ సీజ్ అయింది. ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ చూసి యాజ్ పర్ ద లా వీ విల్ టేక్ ఫర్దర్ యాక్షన్. ప్లస్ గాంజా సంబంధించిన సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించిన ఇప్పుడు అవేర్నెస్ చేసాము. प्लस अदना प्रॉब्लम వచ్చినప్పుడు जैसे लोकल लोगों ने बताया कि पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी नंबर्स दे दिया गया है CI भैंसा टाउन के द्वारा, मेरे द्वारा. अभी कुछ भी प्रॉब्लम है उस नंबर पे बताने का. और एज रिजवान लाला नामी शख्स मल्लेपल्ली के मोइन चागना से हफ्ता वसूली करने लगा, ना देने पर मारपीट भी की गई। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद का ये वाकया बताया गया है। आइए देखते हैं मुतासरा का क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है भाई, मेरा मल्लेपल्ली मोइन छागना है भाई. अचानक रात में मेरे पर अटैक हो गया मेरे छोटे के ऊपर. लो आके चाकू से डरा करके कैमरा देखिए अल्लाह क्या करे, कैमरे के सामने नहीं करके अल्लाह क्या करे, बाहर पार्किंग प्लेस है मेरा, पार्किंग प्लेस में कैमरा वर्क लोगों ने मालूम है, तो वहाँ लाके उसको गर्दन में मारना शुरू कर दिए. अब उन्हें कुछ भी बोलने से पहले उसको ऐसा कपड़े उतार के शेडा उतार के उसको चाकू बता दिए, उसको डरा दिए पहले से. तो उन्हें हम मारा वारा खा लिए. तो बोला ठीक है बोल के क्या करा, फिर मैं हुमायूं आपसे आसिफ नगर अपने हबीबनगर PS में आके कंप्लेंट डाला. मैं कंप्लेंट डालने के बाद में फिर उन्होंने रात में 12:30 बजे दुकान बंद करने के टाइम पे उन्होंने क्या करे, सीधा बोले तो 125 जनों को ले लेके उन्होंने मांगड़ो बस्ती से आगे मेरे को वार्निंग दे रहा है, क्या बोल के एक कैसे आना बोल के मांगड़ो बस्ती का जाना, पूरा मांगड़ो बस्ती का रावड़ी छेड़ा रहेगा तो बहुत बड़ा उन्हें. तो उन्हें मेरे को क्या बोल रहा है, तेरे को कारोबार करना या नहीं करना, अगर कारोबार करना तो केस वापस ले ले, अगर नहीं करना है तीनों भाई है ना, तो तीनों भाई को भी मर्डर कर दो, क्या हो खाना खा लो, बोलो कुछ भी नहीं कर सकते हमारे को. पुलिस वाला भी क्या करते, बहुत सी बात पुलिस जेल को बजाते फिर छोड़ के आते हम, फिर आगे मर्डर करते हो कैसा है तुम्हारे को, कारोबार नहीं करने दो तुम. अब देखो भाई हमारी गुजारिश है कि आप लोगों से ये जरा ये कार्रवाई करना जरूरी है. रेवेन्यू साहब से मेरा गुजारिश है, साहब ये आपकी हुकूमत में ऐसा नहीं होना चाहिए. आपसे गुजारिश है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं अगर नहीं खाएंगे तो कैसा करेंगे. आजकल लोग जो चोरी डकैती कर रहे हैं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा तकलीफ जो भी हो रहा. ये कई को बोले तो हमारे पास उन्होंने 3-4 महीने पहले से चाकना खा के जा रहा था, फ्री में खा रहे थे ना. तो इसके बाद में उन लोगों को आदत पड़ गया ना. क्या बोले तो भाई हमारे को हफ्ते को 5,000 रुपये कमीशन देना पड़ेंगे. अगर आप 5,000 रुपये कमीशन नहीं देंगे, बस्ती में से डेली 2 से 3 जनों को भेजाता हूँ, दुकान में डेली हंगामा कराता हूँ, एक ने एक को माना लगा देता हूँ. इसके बाद में नहीं समझ में आ रहा, तुम तीनों भाइयों को मर्डर करना लगा देता हूँ.
एक का नाम है रिजवान लाला है, एक का नाम मोटा लक्ष्मण है और एक का नाम नेमालम। और इसमें जो है ना बस्ती का पूरा यंग पूरा टीम बने हुए पूरे लोग। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से कारोबार है मेरा। मेरे पास कस्टमर पूरा दूर दूर से खाने के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मेहनत से कारोबार जमा है भाई। मैं पूरे हमारे माँ बाप की हमारे बहनों की सपोर्ट है उसमें। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग कैसा जिएंगे बोलो। आजकल गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर रहे, इन लोगों के ऊपर सपोर्ट कर रहे लोगों को। भाई रात में मैं कंप्लेंट देने के बाद में उनको ऑप्शन लेना था, ले लिया उन्होंने ऑप्शन। उन्होंने मेरे को पीछे करे तो मेरा घर तक आ गया, मेरे घर तक आके मेरे को मर्डर करने का से। अब मैं क्या बोल करूँ बोलो। अब मेरा घर आसिफ नगर विजयनगर कॉलोनी में है, अलसबा होटल का नहीं मेरा घर, दुकान मल्लेपल्ली में। अब यहाँ से मेरा घर तक पीछे कर लेते आ गया बोलो। अब मैं क्या बोलूँ, मैं अब मर्डर करना बोलो तो मैं कारोबार न करूँ, मैं ये सब भीख मांग के खाऊंगा बोलो साहब। आज क्या भीख वाला को तो इज्जत होगा, कारोबार करने वाला इज्जत नहीं है साहब। अब कैसा करना बोलो, आप लोग कुछ बोलो मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं बोलो। 25 जने पूरे सामान वाना के साथ आए, मेरे पास पूरा वीडियो है, पूरा सीसीटीवी कैमरा है मेरे पास। और ना चाकवा ले लिखा है, कमर में चाकवा ले लिखा है, डिक्की में स्टिक ले लिखा है, पूरा वो शहना आता है ना, वो शहना वाना पूरा ले लिखा है। पूरा गली भर गया पूरा उन लोगों का, पूरा रात भर। मेरे घर पे ना 4 से 5 जना ऐसे टाइम में क्या एक के पास हाथ में चाकू था, चाकू बता के जा रहा, क्या कर लेता देखो तुल्ला, क्या सुबह तक अगर कैश वापस नहीं लिए तो मर्डर करना लगा तो बोल के पूरा सीधा सा वार्निंग दे रहा। तब हमला कारोबार नहीं करना है सब बोलो। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 जने का पेट चलता। अब किसी का गरीब का पेट चल रहा बोलो तो क्या पेट में लाद मारने क्या बराबर बोलो। ये हम भी शोर बन जाना है, डकैत बन जाना है, हम लोग भी राउड शीटर बन जाना क्या बोलो। आप जो राउड शीटर की इज्जत आजकल वो सीधा आदमी की इज्जत ही नहीं है, जो मेहनत करे खाने वाले को उसका कोई इज्जत ही नहीं है साहब। तो क्या करना मेरे को बोलो, या खुदकुशी कर लो, हफ्ता नहीं दिए तो मर्डर करता बोल के बोल रहे। अब हमारा अम्मा शुगर पेशेंट है, रात से हमारा अम्मा हॉस्पिटल में। अब उसकी जिम्मेदार कौन है बोलो। अब कुछ भी नहीं कर रहा गवर्नमेंट, क्या करेंगे बोलो। मर जाना है क्या, खुदकुशी करना है क्या बोलो मेरे को। पुलिस वाले क्या बोले, पुलिस वाले को कंप्लेंट देने के बाद पुलिस वाला आगे करके चले गए ना। वो पुलिस वाले के सामने क्या बोला देख लेता हूँ। आजकल पुलिस वाला को भी नहीं हटा ना। आसिफ नगर वाला को नहीं दिया, हुमायूं नगर वाला को दिया है जाके। हुमायूं नगर और पहले जाओ, आपका हबीब नगर का लगता है लिमिट दुकान से शुरू हुआ ना आपका, पहले दुकान से शुरू हुआ ना, दुकान का देख लो पहले, इसके बाद में हम हुमायूं नगर में ऑप्शन लेंगे उन लोगों के ऊपर। ऐसा कैसा कर सकते हो बोल के पुलिस वाले को। अब आप लोगों का सपोर्ट होना साहब, आप लोगों का सपोर्ट होना है मेरे को, पुलिस का फुल सपोर्ट होना है मेरे को। अब मैं बाहर निकलना बोलो तो मेरे को छुप के निकलना पड़ रहा है, मेरे को गलिया मार के निकलना पड़ेगा मेरे को। रात भर ढूंढना मारने के से सुबह से अब तक की 4 रोड हो गए लोगों का, मेरे पास कैमरा पे सबूत है पूरा, रोड मार रहे सब रहे। रात भर नहीं सोया साहब, 5 बजे हम लोग घर को आए, 2 घंटा सो गए ना। क्या करेंगे बोलो, घर में बीवी बच्चे तकलीफ में, बच्चे हमारे हॉस्पिटल में, उस्मानिया में मेरे बच्ची। अब मैं बोलो काम धंधा छोड़ दे के इन लोगों का पीछे पड़ो साहब, या मैं भी मर जाऊं। कल मोहन चागना बोल के है हमारी, वहाँ पर हमारी भाइयों को अटैक कर दिए। 3 जने आकर हमारे सलमान भाई को बहुत मारे, चाकू बताया। हम रात भर नहीं सोए, पूरे फैमिली रात भर सो नहीं पाए। मेरे भाई को बहुत मारे उन लोग, चाकू बताया। पूरे 5 जने हमारी बस्ती में आ गए, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। हम ये पीएस में भी आए, वो पीएस में भी कंप्लीट करे, दोनों पीएस में कंप्लीट करे हम लोग। पुलिस ने सपोर्ट तो करे हमें, अभी कंप्लीट फिर हम लोग दोबारा आगे करे। हमारी माँ बाप पूरे रात भर नहीं सोए, हमारे भाई को बहुत ज्यादा मारे। पैसे दियो, हफ्ते उसूली दियो 5-5 हजार रुपए बोल के बोले, नहीं देते बोले तो ऐसा अटैक करता तुम लोग के ऊपर, तुम्हारे तीनों भाई को मर्डर कर देता हूँ बोल के उन लोग एकदम आके 3-4 जने पहले मार के चले गए। हम लोग आके कंप्लीट करे, उसके बाद कंप्लीट करके हम 10-15 मिनट हुआ शायद 25 जने फिर आके हमारे पूरे बड़े भाई को पूरा घेर लेके उनको धमकी देना शुरू कर दिए। अगर तेरे यहाँ कारोबार करना है तो कंप्लीट वापस ले ले, नहीं तो तुम तीनों को ये मर्डर कर देता हूँ। मैं जाके भी आया, हमने कमना वाले तो है महाबड़े बस्ती के। श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर ने कहा है कि हम श्री कर्मनाथ मंदिर की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं, जो कि एक आलमी मशहूर इबादत गाह है। एमएलए गुंडू शंकर ने मंडल में श्री कर्मन मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कई सदियों की तारीख रखने वाला श्री कर्मा का मशहूर मज़ार हुकाम की अदम तवज्जुही के बाइस मुनद्दिम हो रहा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।